Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Good evening, everyone. I'm really excited to represent my country, and as we are celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, I will try my best to bring the glory for our country. I will make India proud. Thank you so much. And thank you so much, Global Model India and Pune, for giving me such a big opportunity to represent my country. Thank you. Hello everyone, good evening. This is Vinayak Rashinkar. I belong to Ichagaranji, Maharashtra. I am going to represent India, Mr. Universal World 2022 in Dubai. I would like to thank my national director Amar Sonawne sir and designer Mayuresh Apekar sir for giving me such a wonderful opportunity. I am really excited to do it show in Mumbai. And please support me and my journey. Thank you so much. I'm slipping to get back up, always stand tall, I'm grinning. I got cuts real deep in, bruises scarred. I had to learn how to think with my head and my heart. I've been chewed up, spit out. Thank you. Good evening, everyone. I am Ashish Shinde from Pune, and I am going to represent my country, India, at Man of the Year 2022 pageant. And first of all, I want to thank our National Director Amar Shamu sir, and I would like to thank to Mayuresh Apekar sir for supporting me. And I will definitely give my best, and I will win the show. And thank you so much. So thank you so much for having me here. And well, it's a thrilling experience. Representing your country, you're not only representing yourself, but you're representing your country. So it's a huge responsibility. So it was amazing, and I got this first runner-up position for Mr. World Ambassador International, and I'm looking forward to. So yeah, so it happened in Vietnam on the month of April. So I bagged first runner-up position, and I'm looking forward to represent India one more time if I get a chance for that. So definitely, I would like to thank Mr. Amar Sonawne sir for giving such a wonderful opportunity to representing my country, India, on such a big and prestigious platform. So yeah, thank you. That's all I want. We have a late comer, Mr. Asia, Suraj Kumar. Okay, now the winner of Mr. Asia 2022, we have Mr. Suraj Kumar. Can we once again have a huge round of applause for both of them, everyone? Please hold our time for the program starting. विविध गोष्टीतून सरांनी आम्हाला एक ट्रॅक दिला. त्या ट्रॅकनुसार आम्ही त्या मार्गाने चालत गेलो आणि योग्य मार्गदर्शनाखाली दुसऱ्या देशात जाऊन चांगल्यातले चांगले परफॉर्मन्स देऊन आम्ही या स्टेजला पोहोचलोय. तर आमच्या सक्सेस मागे सरांचा खूप मोठा वाटा आहे. आणि मॅनहंटने जोही मॉडेल पुढे जाईल तो काहीतरी
नाव रोशन करेल. थँक्यू सो मच. Good evening everyone, namaste. I'm really sorry. First of all, I want to apologize to begin the show a bit late because as you know we have few latecomers. But nonetheless we have to go on with the show. आणि मी अर्ध मराठीत बोलेल अर्ध इंग्लिशमध्ये बोलेल. सो आपले जे आता तीन जे आहेत मॅनंट इंडिया राकेश फ्रॉम मणिपूर, मिस्टर युनिव्हर्सल वर्ल्ड 2022 इंडिया विनायक आणि ऑफकोर्स मॅन ऑफ द इयर इंडिया 2022 आशिष शिंदे. हे तिघंही म्हणजे त्यांना एक फॅक्टर काहीतरी बघितलं असेल मी म्हणून त्यांना सिलेक्ट केलेलं आहे. So all I'm asking everybody is to like support, keep supporting. You have to encourage new talents. These are young boys. They're going to make India very proud, and I have faith in them. So I know that they will make India proud. And if you don't do, you know what I do. I'm just joking. I'm just joking. And of course, I want to thank all our dignitaries here. Dr. Farooq Habib, who's a celebrity physician from New Delhi. He just come to sash these boys. So thank you, Dr. Farooq. And we have Dr. Akshaya Jain, again a big celebrity cosmetologist. Scintillating brand is one of the most emerging skin brands that we know in Pune. Thank you, Akshaya. And we have Mrs. Universe India, who won Mrs. Universe Lovely 2022 in Korea. Kriti Shetty, thank you so much, Kriti. And yes, last but not least, Mayuresh sir, who is always the man behind, Mayuresh Abhyankar sir, who is always the man behind but has the most amazing strength to always support us. So I would like him to also say a few words. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. मगापासून मी माईकची वाट बघायला लागली. सगळीकडे माझ्या हातात माईक येतोय. मला सरांचं कौतुक करायला मिळतंय. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपल्या ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या घडत असतात त्या जेव्हा परदेशात जाऊन आपली मुलं हे सगळं सादरीकरण करतात. मी आता जेव्हा प्रत्येकाच्या पेरेंट्सना भेटतोय त्यावेळेला त्यांचे भरपूर प्रश्न असतात सर, आणि तुम्ही ते अगदी सहज सोडवता कारण ते स्वतः बरोबर असतात. मी बऱ्याच ठिकाणी अनुभव घेतलेला आहे आणि आपली मुलं जी जाणार आहेत आणि जी गेलेली आहेत तिथे चमकलेली आहेत मुलं ही सगळी. मी पण यांना अगदी पहिल्या स्टेजवर सूरजला तर मी बघितलेलं होतं. त्याच्यानंतर मिस्टर एशियाहून तो आलाय आणि मी काय करतोय असा हिरा काढून त्याला कोळसा लागलेला असतो आणि तो घासायचं काम सर करतात. म्हणजे त्याचा हिरा कसा तयार करायचा खाणीतनं मी उचलतोय आणि तुमच्याकडे देतोय आणि त्याला हिरा बनवायचं काम हे सरांचं आहे. आणि ऑब्विसली इथं जे उपस्थित आहेत माझ्या मते आपण मॅडम भेटलेलो आहे. ह्या ज्या सगळ्या स्टेजवरचे अवतरलेले सितारे आहेत तर त्यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत कारण त्यांचा असाच प्रकाश हा आमच्या सगळ्या आता जो मॅनहंट येतोय 2022 मॅन ऑफ द इयर आणि मिस्टर युनिव्हर्सल वर्ल्ड 2022 यांच्यासाठी नक्कीच तुमचा सगळ्यांचा प्रकाश त्यांच्यावर असाच पडला राहील आशीर्वादाच्या स्वरूपात आणि ते सुद्धा आपल्या देशाचं नाव. आणि मला सांगायला खूप छान वाटतंय की सर आणि आशिष शिंदे मॅन ऑफ द इयर आपल्या याला स्वातंत्र्याला 75 वर्ष पूर्ण होत आहेत आणि त्याच दिवशी 15 ऑगस्टला ते बालीला जाऊन पोहोचत आहेत. त्यामुळे मला खात्री आहे की पहिला आपला ज्या भारतातला क्राऊन नक्की येणार आणि पुढचे तिन्ही म्हणजे 1 झालं 2 झालं आणि तिसरं हे तिन्ही आहेत ते विनर गुण येणार सर आणि या स्टेजवर आपण परत त्यांचं सेलिब्रेशन करायचं. आणि छोट्या छोट्या गोष्टीतनं ते मी आता सकाळी आलो. ऑब्विसली जे फोटोग्राफर आहेत त्यांनी खूप छान त्यांची मेहनत दाखवलेली आहे. जे व्हिडिओ शूटिंग करायला आलेले आहेत आपल्याकडं जे बॉलिवूड अड्डा वगैरे ह्याचे सगळे जे आहेत त्यांच्यासाठी खरंच खूप खूप मनापासून मी आभार मानतो कारण ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या लोकांपर्यंत जाणं फार गरजेचं असतं आणि ते मिळणं आणि ते अमर सरांच्या प्रेमापोटी तुम्ही इथं आलात. असेच हे सगळे गोड बोलतात, अतिशय गोड बोलतात. सर मी कितीही ठरवतो की सरांशी बोलायचं नाही, मी त्यांचा फोन उचलायचं नाही, पण त्यांचा फोन आला की मी एकदा रिंग झाली की लगेच उचलतो. काहीतरी वाद होतात आमचे, म्हणजे जिथं चांगलं घडणार आहे तिथं वाद व्हायलाच पाहिजेत सर आणि ते होत आहेत. आणि आत्ताच्या आपल्या ज्या अँकर आहेत त्या इतक्या त्यांच्या
अस्खलित वाणीमध्ये त्यांनी जे बोलून दाखवलं त्यांच्याबद्दल एकदा जोरदार टाळ्या वाजवू. त्या सेलिब्रिटी करत आहे, त्यामुळं हे मला खूप छान वाटतंय. आणि इथं सगळे उपस्थित सेलिब्रिटी म्हणजे डॉक्टर फारुख आहे, त्याच्यानंतर डॉक्टर अक्षय आहे, त्याच्यानंतर प्रीती मॅडमना मी कृती शेट्टी, लास्ट टाइम पण मी तुम्हाला प्रीती मॅडमच म्हणत होतो, त्यामुळे त्यांचं नामकरण मी करून टाकलंय. पण त्यांना भेटलोय मी आणि असे यांचा आशीर्वाद असाच आमच्या मुलांवर राहू दे आणि ग्लोबल मॉडेल इंडिया हे ग्लोबल लेवलला काम करत राहील आणि अशीच मुलं घडवत राहील याची मी खात्री देतो. थँक्यू सो मच. Torn apart from picking up all the pieces is a form of art. I'm never gonna look back, 'cause damn I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change, slowly take a step today. I will never be the same, 'cause that's what it takes. I'm Dr. Akshay Jain. As you all know that I'm a cosmetologist. Cosmetologist means it is all related to you, your personality, your hair, your skin, how you carry yourself and how you represent yourself, and when and how and what. This is all about cosmetology. So Amar is taking you also. I'm conversing right now with people. 3 of you are going for Manhunt. Only one. He's going for Mr. Universe. Okay. So you all are preparing yourself, and as you know, you prepare for your body shape, your skin, your hair, your attitude towards it. And lastly, Amar is always there to guide you. I'm seeing Amar for so many years, and I have seen we have won so many pageants. I think I have met each and every contestant of Amar who is going to represent India on this international stages. So how do you win this pageant? You do not win this pageant with your personality. You can only win this pageant with your strong thought process. You have to decide it that I want to win, and do not take it as expense. I would like to tell each and everyone, because मैंने बहुत सारे ऐसे contestants देखे हैं who come back or while going they keep cribbing behind Amar, it is so expensive, it is so expensive, it is so expensive. Yes, it is an expensive affair, but it is not expensive. It's an investment for your career. It's an investment on yourself, and you are in the easiest profession of this world. You can, Dr. Farooq will agree with me, because we invest in our education, then we invest in our setups, we invest in machineries, we invest in everything, and then we struggle to earn. You invest in yourself best, nothing like that. People work, but they don't get chance to invest in themselves. They keep on investing on things which are materialistic, and from there they earn. You are so lucky that you will be investing in yourself, and that is the best investment in this world. So please prepare yourself to win. Do not prepare yourself just to represent India. We don't want to see you just representing it. We want to see it winning. We want to welcome you as a winner. So when is this happening, Amar? First, he's going for Man of the Year in August. Then he's going for in September, and then he's going in October. So Dubai. your time begins now. We have much time. Yeah, you don't have much time. You have to work on all and each and every aspect. We will definitely guide you. All the best, and we all are there to support you as and when you want. We'll guide you and we'll help you out for that. Okay, all the best. Good evening, everyone. So she said we are there, you are free to guide you all. So you are representing your country. So don't be in the race just like a horse. Run, run, and run. Work smart, not work hard. Work smart. Because once you reach there, you don't know what's going to happen. So I'm telling it out of an experience. So you have a lot of preparations over here. You learn a lot of things. But when you go there, it's your mind, your willpower, how you're going to utilize it, and how smartly you're utilizing it. It's not just your body, it's not just your figure, it is your brains also. So work smart, make us proud. I know, definitely you are in the right hands. He's an amazing person, it's not long years we know each other, it's a very short span, but I can definitely tell that you're in the right hands. So he's giving you all the good guidance, but take those guidance and work smart.
Be smarter, not just the running horse. Okay, thank you and all the very best. Come home with the ground. We are waiting for you all. Thank you. Good evening, everybody. I would mainly, because everybody is spoken English, let me just try to be just a bit different. मैं दिल्ली से आया हूँ. मैं स्पेशली सबका ये समर ने मुझे इनवाइट माइक ऊपर यस मुझे समर ने इनवाइट करा था टू फेलिसिटेट जो हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एक चीज़ तो मैं आप लोगों से मिलकर मुझे ये लगा कि द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस आप लोगों में है, जो आप लोगों की पर्सनैलिटी है. सो मुझे कोई शक नहीं है इस बात में कि आप लोग ग्राउंड ज़रूर लेकर आओगे. एंड द वेरी फैक्ट कि आप लोगों को ये एक मौका मिला है कि अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये किसी विलिंग से कम नहीं है. गिव इट योर बेस्ट. And yes, like ma'am said that you are in the best hands. अमर को मैं आई थिंक 15 साल से जानता हूँ एंड मतलब जो सक्सेस इन्होंने जो हासिल करी है कुछ ही सालों में जो इन्होंने करा है, आई थिंक मुझे लगता नहीं है कि किसी ने भी करा है. बहुत से नामी गामी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने काफ़ी साल लिए हैं, लेकिन जो अमर ने करा है 5-6 सालों में वो शायद किसी ने नहीं करा है. और वो दिन दूर नहीं है जहाँ इनका नाम जो है ना इंडिया के कंट्री के टॉप मोस्ट डायरेक्टर्स में इनका नाम आएगा. प्लीज मैं बोल रहा हूँ इस बात को, आप आज की डेट में आप लिख लीजिए. ये मुझे याद है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है. 15 साल पहले की बात है. ये मुझे बोलते रहे कि आपने मिस यूनिवर्स देखा, तो ये मिस यूनिवर्स मुझे दिखाते थे बिठा के और बताते हैं कि मुझे कि ये कंटेस्टेंट है, ये फर्स्ट आएंगे, ये सेकंड आएंगे, ये थर्ड आएंगे. और आप यकीन नहीं करोगे एग्जैक्टली वो ही होता था. मुझे समझ भी नहीं आता था ये टैलेंट कहाँ से आया मेरे पास. ठीक है, तो और एक इवेंट नहीं है, ये इवेंट और इवेंट हर इवेंट की बात बताता था मैं. ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये कई मतलब बहुत पहले बता देते थे कि इसके अलावा कोई जीतेगा नहीं. और ऐसा ही होता था. मुझे याद नहीं कि कोई कैसा इवेंट रहा हो जहाँ पर कोई दूसरा कंटेस्टेंट जीता हो जो इन्होंने नहीं बताया. पूरी दुनिया बोलती थी नहीं, दिस माइट नॉट बी द पर्सन, लेकिन जो ये बोलते थे वही सच होता है. तो अगर इन्होंने आपके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस पे दिखाया है, सो आई एम श्योर दैट देयर इज समथिंग वेरी गुड हैपनिंग एंड अबाउट टू कम. सो राइट, सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर बीइंग हियर. थैंक यू सो मच अमर. थैंक यू. मॅन ऑफ द इयरला महाराष्ट्रातून जाणारा हा पहिला कंटेस्टंट आहे आशिष शिंदे. एकदा जोरदार टाळ झाला पाहिजे. आणि त्याचे वडील ज्योतिराम शिंदे, जे सांगायला खूप अभिमान वाटतं की ते स्वतः रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर आहेत. त्यामुळं हे सगळ्यात कौतुक आहे की प्रत्येकाला असं वाटत असतं की डॉक्टर असेल तर माझा मुलगा डॉक्टरच झाला पाहिजे, आर्मीमध्ये असेल तर माझा मुलगा आर्मीमध्येच गेला पाहिजे. पण त्यांचं असं नव्हतं. माझ्या मुलानं जे त्याला आवडेल ते करावं. याच्यासाठी एकदा ज्योतिराम शिंदे यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ झाला पाहिजे. आणि सर तुम्हाला कसं वाटतंय, आणि आज तुम्ही मुलाला अमर सरांच्या हातात दिलेला आहे हिरा घडवायला, आणि आज तो जाऊन तिथं म्हणजे त्यांचं काय काय तुम्हाला कसा एक्सपिरियन्स आला? मला फार छान वाटतं. तो रिप्रेझेंट करण्यासाठी चाललेला आहे इंडियासाठी, आणि तो डेफिनेटली जिंकून येईल असं मला वाटतं. त्याला आवड होती या क्षेत्रामध्ये अगोदरपासून, मॉडेलिंग वगैरे, त्याच्या ॲक्टिंगसाठी वगैरे. तर त्याच्यासाठी बेस्ट विशेष आमच्याकडून असणार आहे. आणि अमर सरांनी त्यांना जे गायडन्स करतात, मार्गदर्शन करतात, सर तुम्ही करता गायडन्स वगैरे, ते पण फार महत्त्वाचं आहे आमच्या. माझ्या ते अजून आहेत, आपण बोलूया. याच्यानंतर मला असं वाटतंय राकेश जी, उनके मेरे ख्याल से भाई आए, बड़े भाई आए हुए, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको भी इधर आना है. राकेश जी, उनके बड़े भाई प्लीज. वो मणिपुर से यहाँ पे आए हैं, इम्फाल मणिपुर. एक बार जोरदार उनके लिए तालियां हो जाए.
सर आपका भाई मैनेजमेंट के लिए सिलेक्ट हुआ है, तो आपको कैसे लग रहा है मीन्स, और वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहा है, तो आपको कैसे फील हो रहा है? एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी अंकल की तरह एक मिलिट्री में रहता हूँ। अभी जस्ट मैं तो मैं भाई ने फ़ोन किया था, मैं एकदम बहुत खुश हो गया था। तो मैं अचानक से बहुत दूर है, जाना भी है, यहाँ पर आना भी है, तो मैं सडनली मैंने छुट्टी लिया। उसके बाद हम आ गए ऊपर वाला के हाथ में साथ दे रहा है, ऊपर वाला भी उसके हाथ में हो गए होगा। थैंक यू। महाराष्ट्र में आके आपको कैसा लगा? अभी महाराष्ट्र में अच्छा लगा, मौसम भी अच्छा है, जैसा हमारा उत्तर का नॉर्थ ईस्ट का मौसम जैसे ही है। और यहाँ का जो इंसान है बहुत अच्छा है, तो ह्यूमिनिटी अच्छा होना चाहिए, बाकी जो चलते रहते हैं वही है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। विश ऑल द बेस्ट राकेश, आपको इधर ही बैठना है। और याच्यानंतर परत मी मराठीत का बोलतोय, कारण पुन्हा एकदा मी सांगू इच्छितो की मिस्टर युनिव्हर्सल वर्ल्ड 2022 हा सुद्धा मला ते 7 इयर्स मध्ये पहिलाच महाराष्ट्रीयन चाललाय आणि तो विनायक चाललाय, तर मी त्याच्याही पेरेंट्सना इथे इन्व्हाइट करतो. त्याच्या मिसेस इथं आल्यात, एकदा त्यांना इथं बोलवायचंय मला. विनायकच्या मिसेस इथं आहेत, त्यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या झाला पाहिजे. त्यांनी परमिशन दिली म्हणून तो जाऊ शकला. बसा. काय वाटतंय तुम्हाला? तुमचे मिस्टर इंडियाला रिप्रेझेंट करायला मिस्टर याच कॉम्पिटिशन साठी झाले, कसं वाटतंय तुम्हाला? फर्स्ट ऑफ ऑल विश्वासच बसत नाहीये, आणि सगळ्यात पहिला सांगायचं तर माझा सपोर्ट असा नव्हता, हे ना इतका असा सपोर्ट नव्हता. पण अभ्यंकर सर एकदा घरी आले आणि त्यांनी ऑल ओव्हर सगळं सांगितलं. सो मग मी तयार झाले आणि बरेच वेळा मी सर तुमचा आणि यांचा कॉन्फरन्स कॉल वगैरे पण ऐकले सोनवणे सर. सो बरेच म्हणजे हे इतकं सांगतात तुमच्याबद्दल की सोनवणे सर असं इंग्लिश बोलतात, असं बोलतात, हे बोलतात, ते बोलतात. खूप काही ऐकलंय तुमच्याकडून आणि आज फर्स्ट टाइम भेटले. बघितलं क्षणी लक्षात येते की हाऊ मच टॅलेंटेड यू आर. सो थँक्यू सो मच. ह्यांचं भाग्य आहे की तुमच्या दोघांसारखे गुरु ह्यांना मिळाले. ॲक्च्युली ह्यांना मॉडेलिंगची आवड कॉलेजमध्ये असतानापासूनच होती, पण तसं सपोर्ट नाही मिळाला. पण असं म्हणतात ना की लक असतं, लक जे आहे ना ते खूप वर्क करतं, त्यामुळे ते आता त्यांचं लक लागलंय तुमच्या दोघांमुळं असं वाटतंय. थँक्यू. एकदा खरंच प्रेझेंट करणारे आपले 2 कंटेस्टंट, एक तर आशिष आणि दुसरा विनायक, आणि त्याचबरोबर मणिपूरहून आलेला खास राकेश, याच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या झाला पाहिजे. आणि त्यांच्या या घरातल्यांना इथं बोलवायचं कारण असं होतं की घरचा सपोर्ट हा तेवढाच इम्पॉर्टंट असतो. कारण आपण नुसतं म्हणत असतो की आम्ही दोघं गुरु आहे, पण घरच्यांनी पण त्यांना तेवढाच सपोर्ट देणं, तेवढंच त्यांच्याबद्दल काम करणं हे गरजेचं आहे. आणि विनायकचा तो मुलगा आहे, तो आता चाललाय म्हणून तो रडायला लागलाय, त्याला सोडून तो राहत नाही खरं तर. आणि तुम्ही सगळे इथं वेळ काढून आलात आणि एवढं छान असं मस्त हॉटेलमध्ये सरांनी असं पॉश एकदम हे ठेवलंय, तर मला असं वाटतंय की 3 जण जे आहेत ना ते डिनर झाल्यानंतर तुम्ही अशी ग्रँड पार्टी कराल असं अपेक्षा करू आम्ही. आमच्याकडनं अपेक्षा नाही करायची, तुमच्याकडनं आम्हाला अपेक्षा आहे, एवढं लक्षात ठेवा. आणि तुम्ही आत्ता जे बसलेले आहेत ना त्यांच्यापेक्षा दुप्पट लोक तुमची आलेली असतात, कारण ही तुमच्यासाठी आलेली आहे, ही तुमची लोक आहेत, ही आपली लोक आहेत. आणि मला आता जसं सांगितलं ते जैन मॅडम त्यांनी सांगितलं, शेट्टी मॅडम त्यांनी सांगितलं की नुसतं दिसणं हे महत्वाचं नाहीये, तुमचं तिथं अस्तित्व आणि असणं हे तेवढंच गरजेचं आहे. जरासं जास्त मराठीत बोलतोय मी. तुमचं टॅलेंट, अस्तित्व म्हणजे काय हे तुम्हाला थोडक्यात सांगतो. आपको ये बोल रहा हूं मैं कि आप वहां पे जो आपका प्रेजेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मीन्स मैं तो गया नहीं हूं, मैं तो अपना
हमारा महाराष्ट्र का ही मैन ऑफ महाराष्ट्र हूँ लेकिन जो है मुझे दिख रहा है ये तीनों में कि ये कर सकते हैं, और इसके लिए अमर सर बार बार मुझे बोलते हैं कि सर वो करेंगे, सर वो डेफिनेटली भी विनर होंगे। लेकिन जो वो बोल रहे हैं, जैसे अभी डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर सर ने, कि जो डॉक्टर फारूक सर ने बोला कि जो अमर सर बोलते हैं वो होता है, डेफिनेटली मैं ऐसे ये कर रहा हूं कि ये तीनों के बारे में सर ने ऐसे ही बोला है की सर या वर्षी बघा आपण हे तिन्ही विनर घडवून आणायचे, ते जिंकणार हे ते सारखं म्हणताय, नुसतं ह्यांनी म्हणून उपयोग नाहीये। सिर्फ अमर सर बोल रहे हैं इसलिए वो कुछ भगवान नहीं है, आपको भी उतना ही करना है, डेडिकेटेडली वर्क करना है। और मैं देख रहा हूं, मुझे सब समझ में आ रहा है, और मैं कितना फॉलोअप रखता हूं सबको मालूम है। अमर सर ने बोला तो वो होना ही चाहिए, एक दिन में नहीं आधे दिन में होना चाहिए। सबको लगता है सर कितना गड़बड़ करते हैं, सर कितना गड़बड़ करते हैं, लेकिन नहीं, वो भी देखा जाता है ऊपर। तो थँक यू सो मच। या सगळ्या फॅमिलीला मी पुन्हा एकदा मनपूर्वक आभार मानतो की अमर सर आणि ग्लोबल मॉडेल इंडिया याच्यावर विश्वास ठेवला। या विश्वासाला नक्की ही मुलं कुठेही तडा जाऊ देणार नाहीत, आणि नुसतंच अमर सर आणि ग्लोबल मॉडेल इंडियाचं नाव नाही, तर तुमच्या खांद्यावर आता जे सॅश घातलेलं आहे ते नुसतं सॅश नाही आहे, तो इंडिया तुम्ही खांद्यावर घेऊन चाललाय। तुमच्या बरोबर तुमचे गुरु, तुमचे आई वडील, तुमचे मित्र, तुमची सिटी, तुमचा भारत हे सगळं आहे, आणि तसंच तुम्ही रिप्रेझेंट करावं अशी माझी इच्छा आहे। थँक्यू सो मच। थँक्यू। आय एम व्हेरी हॅपी and I'm very proud to represent my country, and it's a dream for me to represent my country, and finally my dream is going to be happen, so I'm really proud, and it's a great responsibility, so I will work hard and I need to focus on my I will try my best and give my best to make India proud. Thank you. मतलब तैयारी कैसी चल रही है आने वाले टाइम पे? Okay. Now I am preparing for the pageants, and I need to focus physically, mentally, and spiritually on everything, and I will give my 100% to make India proud. अमर जी के बारे में कैसे? अमर के बारे में कैसे? I really want to thank Sir Amar Sir. He's a really good person, and I would like to thank him for giving me such a great opportunity, and I will make him proud. Thank you. मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड एंड आई एम सो एक्साइटेड। जो मैं अभी रिप्रेजेंट करने वाला हूँ इंडिया को इंडोनेशिया बाली में। और आने वाले टाइम पे क्या नहीं, क्या बोल रहे? सॉरी, क्या तैयारी कर रहे हैं आप उसके लिए? ओके, मतलब ओके, वैसे हमें अभी हमारे उधर 4 राउंड्स रहेंगे, स्विमिंग कॉस्ट्यूम राउंड, वेस्टर्न राउंड एंड इंडियन कल्चर। तो वैसे ही अभी मेरा प्रिपरेशन चालू है, सब मेरा ऑल सेट है, बस मुझे अब उधर जाकर मुझे अपना बेस्ट देना है। अमर सर के बारे में आप क्या कहेंगे? अमर सर के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया मैन ऑफ द ईयर के लिए, एंड उनका सपोर्ट, मतलब वो हर एक चीज़ में मुझे गाइड करते रहते हैं, हाउ टू ड्रेस, हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक। तो वही उनका भी थैंक्स करूँगा मैं। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस सेसिंग सेरेमनी में मुझे इनवाइट किया गया है कि मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए दुबई में जा रहा हूँ, तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। और हमारे नेशनल डायरेक्टर अमर श्यामू सर, वो मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और उन्होंने डेफिनेटली मुझ में कुछ तो देखा है, इसलिए मुझे वो भेज रहे हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी टू हियर। जब आपको ये खबर मिली कि आप वहाँ पर जा रहे, तो कैसा आपने फील किया और किस को सबसे पहले किसको बताया? सबसे पहले मुझे ये न्यूज़ आई कि मुझे जाना है, तो मतलब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहा हूँ। तो मतलब इट्स लाइक ड्रीम, यू नो। सो मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत मतलब सर, बाकी सर जो मुझे सपोर्ट कर रहे, जो मुझे जज कर रहे, मैं उनका बहुत ऋणी हूँ।
और यहाँ तो आपने कर लिया, लेकिन वहाँ पर वो कांटे की टक्कर होने वाली है, उसके बारे में आप क्या तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन क्या चल रही है? हाँ, अभी जो हमारा डे बाय डे ग्रूमिंग सेशन चल रहा है, मतलब वहाँ पे कैसे प्रेजेंट होना है, कैसे मतलब वॉक एटीट्यूड, क्वेश्चन आंसर, टैलेंट राउंड, वो सब मतलब हम तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हम बहुत खुश है इसलिए। नेशनल डायरेक्टर अमर जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नेशनल डायरेक्टर तो सर इतने अमेजिंग है कि मतलब कुछ कह नहीं सकते। मतलब हर छोटे छोटे पॉइंट पे हमें वो बताते हैं कि हमारा मतलब वो निकाल दे कि हाँ ये तुझ में कमी है, ये होना ही चाहिए, तो उस पर वर्क कर रहे हैं और हम भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि उनके जैसे सर हमें मिले हैं, तो हम डेफिनेटली विन होके ही आएंगे। हमने देखा अभी आपके स्पोर्ट के लिए आपकी वाइफ भी साथ में आई थी। हाँ, क्या हमने भी बहुत अच्छा आपके बारे में बोला? हाँ, एक्चुअली उसका सपोर्ट नहीं था मुझे, लेकिन मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहा हूँ, तो वो मतलब ठीक है, ऐसे मतलब अपॉर्चुनिटी किसी को नहीं मिलती, तो आप डेफिनेटली जाओ। तो मुझे अभी घर से पूरा सपोर्ट है, तो मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सर। I guess I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. You're never gonna look back. 'Cause damn. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ और मैं सबसे पहले आपको किसी ने बताया था इसके बारे में आपको? मुझे पूजा मैम है, इनने बताया। तो आप क्या तैयारी कर रहे हो? आने वाले टाइम पे क्या तैयारी कर रहे हो आप? मॉडलिंग किस में तरह से तैयारी कर रहे हो? कौन करा रहा है आपको तैयारी? मेरे मम्मी पापा और नेशनल डायरेक्टर अमर सर वो ही। हाँ, अमर सर के बारे में क्या कहना चाहते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अमर सर को थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि वो मुझे इतने लेके जा रहे हैं। हाँ, और सपोर्ट भी बहुत दे रहे हैं, इसलिए। हमारे जो अमर सर है उन्होंने हमको बहुत बढ़िया मार्गदर्शन किया है, इसकी वजह से हम अच्छे टाइटल्स इंडिया में लेके आए। और मैन हंट के लिए जो भी जा रहा है उसको ढेर सारी बधाइयाँ, और आशीष के लिए ढेर सारी बधाइयाँ, और वो जीत के आए। और आने वाले टाइम पे क्या तैयारी कर रहे हैं आप? आने वाले टाइम पे मैं मिस्टर वर्ल्ड के लिए तैयारी करना चाहूँगा, जो कि 2016 में हुआ था मिस्टर वर्ल्ड, रोहित खंडेलवाल। उसके बाद मिस्टर वर्ल्ड के लिए कोई गया नहीं और ऑर्गेनाइज ही नहीं हुआ, तो उसकी राह देख रहा हूँ। और अमर सर के बारे में आप क्या कहेंगे? अमर सर के बारे में वही बताना चाहूँगा कि उनके जैसा मार्गदर्शक या गुरु पूरे संसार में नहीं है। आज बहुत खुश हूँ, मैं बहुत थ्रिल्ड हूँ दैट मेरे कुछ दोस्त हैं जो इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरनेशनली फॉर मैन हंट, फॉर मिस्टर एंड मिस्टर यूनिवर्सल वर्ल्ड एंड मैन ऑफ द ईयर। सो मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ दैट माय फ्रेंड्स आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया। आने वाले टाइम पे आप क्या करना चाहेंगे आप? क्या कर रहे हो? वेल मैं एक इंजीनियर हूँ, बट मेरी पैशन एक्टिंग एंड मॉडलिंग है, सो मैं डेफिनेटली मॉडलिंग को ट्राई करना चाहूँगा, एक्टिंग एंड मॉडलिंग ट्राई करना चाहूँगा। अमर सर के बारे में आप कुछ कहेंगे? ऑफ कोर्स सो अमर सर इज़ माय नेशनल डायरेक्टर। मैं उनकी वजह से अभी तक मैं आई रिप्रेजेंटेड इंडिया बाय द वे, एंड फॉर मिस्टर वर्ल्ड एम्बेसडर इंटरनेशनल 2022 in Vietnam this year only. So I would like to thank my national director, Mr. Amar Somanamade, and yeah. Thank you so much. Thank you so much. Hi, I'm Mrs. Kriti Shetty, Mrs. Universe, Central Pacific Asia, represent India in Mrs. Universe and coming back with the title Mrs. Universe Lovely. So I'm very lucky to be here today in the sassing ceremony, and man, over here we are talking about man, and there's a saying, there's a female behind every man for a success. But here I would love to change this saying, there's a man behind a man. So like we have 3 gems over here who are representing India, and it is a man who is bringing them up, making them proud enough to represent our country. So all the very best to all of them. Thank you. अमर सर के बारे में आप कुछ कहेंगे? ओके, अमर सर, मैं अमर से बहुत शॉर्ट स्पैन हो गया हम दोनों का पहचान होके, बट
अमर से मिलने के एक ऐसा एहसास हो गया कि ही इज़ द राइट पर्सन, कि अगर कोई रिप्रेजेंट करना चाहता है एंड इन दिस फील्ड अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हो देन यू कैन कॉन्टैक्ट अमर. ही इज़ द राइट पर्सन. अच्छे से गाइड करेंगे. इट इज़ नॉट लाइक गाइड कर दिया और छोड़ दिया, बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ कंटेस्टेंट्स ऑफ हिम हु आर स्टिल कनेक्टेड विद हिम. सो ये एक होना चाहिए हर एक नेशनल डायरेक्टर के अंदर. कंपटीशन होने के बाद छोड़ना नहीं चाहिए अपने कंटेस्टेंट्स को. टेक देम फॉरवर्ड एंड ही इज़ अ पर्सन. थैंक यू सो मच. सो बेसिकली मैं सब कंटेस्टेंट्स को मैन हंट इंटरनेशनल यूनिवर्सल में सबको ऑल द बेस्ट देना चाहूँगा. एंड आई रियली होप दैट दे परफॉर्म एट द बेस्ट एट दिस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म. ऐसा अपॉर्चुनिटी एक बार आता है लाइफ में टू ऑल द कंटेस्टेंट्स. सो आई रियली विश ऑल द कंटेस्टेंट्स, ऑल 3 of them, all the best. And signing off is तुषार पवार. और आने वाले टाइम पे आप क्या करेंगे? सो बेसिकली मैं एक्टिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ. आई एम एन इंटरनेशनल विनर एशियन इंटरनेशनल 2019. बिफोर लॉकडाउन मैं गया था थाईलैंड टू रिप्रेजेंट इंडिया. मैं जीता हूँ. एंड अभी मैं एक्टिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ. और जो यूथ है इन मॉडलिंग, आई एम मेंटोरिंग देम. आई हैव ट्रेंड मोर देन 1000 मॉडल्स टिल नाउ इन 3 years. अमर सर के बारे में आप क्या कहेंगे? अमर सर के बारे में बेसिकली जितना कहे उतना कम है. ही इज़ वन ऑफ द डायनामिक पर्सनालिटी इन दिस इंडस्ट्री. कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने अचीवमेंट किया है. एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड ही विश टू ग्रो एट द मोस्ट. थैंक यू सो मच. Good evening. I'm Amar Shamusunavne. I am so happy that we are doing Manhunt India 2022 sashing ceremony and media presentation. Along with that, we are also doing sashing for Mr. Universal World 2022, which will be in Dubai this October. And right now, we are focusing on Man of the Year 2022, and it's represented by Ashish Shinde of Pune. Manhunt India 2022 ये वर्ल्ड का सबसे पुराना और सबसे बड़ा पैजेंट माना जाता है, जहाँ पे जॉन एब्राहम, डिनो मौर्या, जुल्फी सैयद ये जाकर जीत कर आए थे. तो इस साल मैनहंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे चुना है एज द नेशनल डायरेक्टर. ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है. एंड आई प्रॉमिस यू दैट आई विल टेक दिस much ahead, and my vision is very clear. I want to make this one of the best contest ever. And this year we have Rakesh Singh, who is from Manipur, who will be going to represent India in Philippines in the last week of September, and the finals is on first week of October. So I urge everybody to please support our contestants, because they are representing you, they are representing me, they are representing 1.3 billion people of India. थैंक यू. जय हिंद. पार्टिसिपेट के साथ आपकी क्या तैयारी चल रही है? वेल हम लोग का तैयारी अभी सब लहजे से चल रहा है. जैसे उनका ग्रूमिंग चल रहा है, उनका फैशन सेंस में, जैसे फैशन वॉक में हम लोग काम करें, उनके स्किन के ऊपर काम करें, उनके हेयर पे काम करें, उनके इंटरपर्सनल स्किल्स पे काम कर रहे हैं. हर तरीके से हम क्योंकि इंडिया से जो लोग जाएंगे वो हर तरह से देखती अरे इंडिया से कोई आया है, सो दे आर एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज अबव द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़. तो इसलिए हम उनको अभी से जितना हमको टाइम मिला है उसको मैं हर एक सेकेंड इज़ वेरी वैल्यूबल. एंड आई वांट टू मेक श्योर दैट whoever goes to represent India, he is one of the best. और या आई होप आपका आशीर्वाद हो तो वो लोग ज़रूर जीतेंगे. जो मॉडलिंग करना चाहते हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? जो मॉडलिंग करना चाहते हैं, देखिए क्या होता है ना कि लोगों को सब लोगों को लगता है अरे मॉडलिंग में जाना है, पर उनको एक राह नहीं मिलता, उनको एक वे नहीं मिलता है. तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ, जैसे भी आप अगर